بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ قیمتی 10 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم اس اشرے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ان راتوں کی اہمیت جانتے ہیں؟ اگر نہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں 5 ایسی اہم عبادتیں جن سے ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اللہ کی رحمت، مغفرت اور جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں وہ تمام باتیں بتائی جائیں گی جو ہمیں اس مبارک عشرے کو صحیح معنی میں گزارنے کا طریقہ سکھائیں گی۔ رمضان کے آخری 10 دن وشیش روپ سے مہتوپورن ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی وشیش رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، جسے قرآن میں 1000 مہینوں سے بہتر بتایا گیا ہے۔ یہ وہ سمے ہے جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو ادھک بڑھا دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے تیار کرتے تھے۔ ان دنوں میں کچھ وشیش عبادتیں کرنے کی اتیدک سفارش کی گئی ہے۔ نیچے ان عبادتوں کو تفصیل سے سمجھایا گیا ہے۔ 1. قرآن کی تلاوت۔ رمضان اور قرآن کا سمبندھ قرآن رمضان میں ہی نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ ہی وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ستیہ اور استیہ میں فرق کرنے والی اسپشٹ نشانیاں ہیں۔ سورہ البقرہ 2185۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ آخری سال انہوں نے یہ دورہ 2 بار کیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے اور ان کی وفات سے پہلے والے سال میں انہوں نے 2 بار دورہ کیا۔ صحیح البخاری 4998۔ اس پر عمل کیسے کریں؟ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور جتنا سمبھو ہو سکے اسے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کی شکشا کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صبح اور شام کی تلاوت کو اپنی دنچریا میں شامل کریں۔ 2. اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگانا۔ رمضان کے آخری عشرے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ادھک عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو جاتے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، عبادت میں پوری طرح لگ جاتے اور کمر کس لیتے۔ صحیح البخاری 2024۔ صحیح مسلم 1174۔ اس پر عمل کیسے کریں؟ خود اٹھ کر عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس برکت سے محروم نہ رہنے دیں۔ گھر میں قیام اللیل تہجد کی عادت ڈالیں۔ اگر گھر کا کوئی سدسیہ بیمار یا کمزور ہے تو اس کے لیے وشیش روپ سے دعا کریں۔ کم سے کم آخری 3 راتیں عبادت میں بتائیں تاکہ لیلۃ القدر کو پایا جا سکے۔ 3. اعتکاف۔ مسجد میں رہ کر عبادت کرنا۔ اعتکاف کا ارتھ ہے کہ انسان کچھ سمے کے لیے دنیا کے کاموں سے الگ ہو کر پوری طرح اللہ کی عبادت میں ویست ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، جو ویکتی رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ المجام الکبیر۔ الطبرانی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ صحیح البخاری 2025۔ صحیح مسلم 1171۔ اس پر عمل کیسے کریں؟
मर्दों को मस्जिद में एतिकाफ करना चाहिए। अगर पूरे 10 दिन संभव न हों तो कम से कम एक दिन का एतिकाफ करें। औरतें घर के किसी एक हिस्से को इबादत के लिए विशेष रूप से निर्धारित करके एतिकाफ कर सकती हैं। मोबाइल और बेकार की बातों से बचें और पूरी तरह इबादत में व्यस्त रहें। 4. मसनून, सुन्नत और नमाज़ें। रमज़ान में फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नफ़ल नमाज़ों का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति रमज़ान में एक नफ़ल इबादत करता है उसे फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है, और जो फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है। सुनन इब्न माजा। इस पर अमल कैसे करें? तहज्जुद, रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नफ़ल नमाज। इशराक, सूरज निकलने के लगभग 15 मिनट बाद। चाश्त, सुबह के समय पढ़ी जाती है। अव्वाबीन, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज। दिल से दुआ करना और उसकी अहमियत। दुआ एक ऐसी इबादत है जो इंसान को सीधे अल्लाह से जोड़ती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरह गाफिर 40-60। रमज़ान और ख़ास तौर पर आखिरी अशरा दुआ के लिए सबसे बेहतरीन समय है। इस दौरान अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ को ज़्यादा कबूल करते हैं। नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं की जाती, रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, इंसाफ करने वाले हाकिम की और मज़लूम की। सुनन अत-तिर्मिज़ी 1905। रमज़ान में हमें चाहिए कि हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माता पिता, दोस्तों और पूरी उम्मत के लिए दिल से दुआ करें। खासतौर पर लैलतुल क़द्र में ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ु अन्नी। हे अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। सुनन अत-तिर्मिज़ी 3513। इसलिए रमज़ान के आखिरी अशरे में दिल से गिड़गिड़ाकर, आंसू बहाकर और पूरे यकीन के साथ अल्लाह से हर भलाई की दुआ करनी चाहिए। यही असली सफलता है। ए अल्लाह, तू रहमान और रहीम है, तू सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। हम गुनहगार हैं, तेरे दर पर झुके हुए हैं, तुझसे अपनी मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह, हमारे छोटे बड़े, छुपे खुले, जानबूझकर और अनजाने में किए गए हर गुनाह को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, तू हमें लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमा। हमारी ज़िंदगी के हर आने वाले लम्हे को नेकियों से भर दे। हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे। हमारी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक कर दे। ए अल्लाह, तू हमारे माता पिता पर रहमत फरमा। उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, उनकी उम्र दराज कर, सेहत और बरकतों से नवाज दे। अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। ए अल्लाह, तू हमें दीन की समझ दे, कुरान से मोहब्बत दे और हमारे आमाल को अपने दरबार में कबूल फरमा। हमें सच्चा मोमिन बना, तकवा की दौलत से नवाज, और हमें नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता कर। ए अल्लाह, हमारे घरों में बरकत दे, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा। हर तरह की तंगी और परेशानियों से निजात दे। हमें बीमारी से शिफा अता कर, हमारी मुश्किलें आसान कर, और हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता कर। ए अल्लाह, तू हमें जहन्नम की आग से बचा, हमारी कब्र को रोशन कर। हमें क़ियामत के दिन अपने साए में जगह दे, और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने नेक बंदों के साथ जगह अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, और हमें अपनी रहमत से माला माल कर। आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान का आखिरी अशरा हमारे लिए एक अनमोल मौका है।
जिसे हमें किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहिए। यह वो समय है जब अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल करता है, उनके गुनाहों को माफ़ करता है और उन्हें जहन्नम की आग से निजात देता है। यह वही अशरा है जिसमें लैलतुल क़द्र जैसी मुबारक रात मौजूद है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर हमने इस अशरे में खुद को इबादत और नेकी में नहीं लगाया, तो हमें नहीं पता कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस अशरे में कुरान की तिलावत को बढ़ाएं, अपने घर वालों को इबादत के लिए जगाएं, अगर मुमकिन हो तो एतिकाफ़ करें, नफ़ और मसनून नमाज़ों की पाबंदी करें और सबसे बढ़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ करें। हमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि ये अशरा हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज इसी में छिपा है कि हम रमज़ान के इन आखिरी दिनों को बेकार चीज़ों में बर्बाद न करें, बल्कि उन्हें अल्लाह की इबादत में गुजारें। अगर हमने इस वक्त को सही इस्तेमाल कर लिया, तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती और फलदायक समय बन जाएगा, और अगर हमने इसे गंवा दिया, तो फिर पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह हमें इस आखिरी अशरे की बरकतों से मालामाल करे, हमारी दुआओं को कबूल करे, हमें गुनाहों से बचाए और हमें अपनी रहमत और माफ़ी के साए में रखे। आमीन। तो भाइयों और बहनों, रमज़ान का आखिरी अशरा सिर्फ इबादत का ही नहीं, बल्कि खुद को बदलने का भी वक्त है। हमें चाहिए कि हम इस अशरे में कुरान की तिलावत बढ़ाएं, अपने घर वालों को इबादत के लिए जगाएं, मुमकिन हो तो एतिकाफ़ करें, मसनून नमाज़ों की पाबंदी करें और दिल से अल्लाह से दुआ करें। अगर आज हमने इस अशरे को गंवा दिया, तो हमें नहीं पता कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। तो आइए इस अशरे को अपने लिए मग़फ़िरत, रहमत और जन्नत का ज़रिया बनाएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हर कोई इस मुबारक अशरे की अहमियत को समझ सके। या अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतों से मालामाल कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें लैलतुल क़द्र की रात अता कर दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।